Yeah. Yes. So good evening to all students and welcome to the Python and R programming session. So I am the trainer for the Python programming and Mr. Rahul Pun is a trainer for the R programming modules. Okay. So we will see the contents and whatever the things we are learning in that course. So there are the different topics like Python, then why we choose for the Python, then how AI and data science they are mostly use the Python programming language as compare there are the other multiple language like Java is there, PHP is they were there, MATLAB, and there are the multiple programming language. So they are present, and people are and more people are working on these languages also. But yeah, why we are choosing the Python programming language? Why we are choosing the R programming language? So we will see one by one what are the things which are help us to understand why we are taken the Python programming language for the all purpose. Like if you go for the web programming, the Python is there. If you go for the Android, Python is there. If you go for the data science and AI application, Python is there. If you go for the statistical analysis, Python is there. So everything. So like from your functional programming to your object oriented programming, all are done in the Python. Okay, so why? So that's why the people are moving towards the Python, and we will see some other things like also like large community, how the people are sharing their contents and their open source codes to the other people, and everything we will see. Okay, so yeah, so I'm just sharing the contents of our course, so whatever we are going to learn in that course. Okay, so just I'm sharing the content. Yeah, so you can see here. So in the first unit, we have designed that course into the different units. Okay. So पहली unit में there is a installing the Python. So first we will install the Python on our own PC by using the different uh, framework like Anaconda framework is there and other different framework also. Then we will see the introduction of the Python, then what are the different basic syntax of the Python, then what are the different data type are there, then how the variable declaration happen in the Python, how operators are working, how we are taking the input and output. Like in the C++, you are taking the input like printf function or cout function. So how Python take the input from the user, then we will declaring our variable, then we will see our first program. Yeah, you know, the everyone is telling the hello about the hello world, so we will also see the hello world. And then we see the flow of control, basically your if and else condition where you are controlling your flow of the program. Then we will see some looping concept where we iterate our process as the 10 times, 100 times or multiple times. Okay, then we see how to break our flow control in middle of the code by using the break and continue statement. Then we move towards the data type of the Python. This is the main part of the Python. So in the data type, the first data type is the tuple is there. So we will see what is the tuple, how tuple are immutable and mutable properties. Then there is a second data type which is a dictionary. Then we will see all the function which are available for the dictionary. So there is a built-in function also. There are some function which we are creating the function to use the dictionary. So we will see all that part related to dictionary. Then we will go towards the list. So in the list there is a 10 to 12 different type of inbuilt function of, so which help to for the list to insert the value, delete the value, append values, and all the things. So we will see how the element are searched in the list. So this all the content we will see one by one. Okay, then there is a function method. So like in the C++, Java, you saw about the function. So in the similar in the Python, there is a two different type of function: inbuilt function and user defined function. Then in the function there is a local variable, global variable.
So this all things we will see in the unit 5. Okay, then then again we will see some operation which are useful for tuple. So why we are using the tuple and where the tuple is really used, so we will see that contents into that unit. Okay, then we will move towards the our object oriented programming. This is comes into the advanced Python. So we will see how to what is class, how to declare a class, then what are the regular expression. Basically the regular expression is a part of the natural language processing, which is one of the area of artificial intelligence. So to see the syntax, to see the strings, then if you want to extract some particular part from the strings, then you have to use the regular expression. So we will see that part also in this unit. Then we will see some exception. So exception can be runtime also. So we will see how to handle that exceptions and what are the different method which are used to handle that exception. So try is there, except is there, final is there. So these are different method which used in the exception part. Okay, then we will see the data analysis part. So in the data analysis part, you already, if you heard about the SQL, Oracle, MongoDB, so they are using some particular language like SQL is a structured query language. So in this you are applying the query and based on that query you are getting the value written back. So similar in the Python, similar to SQL, there is a pandas library. So this library has capability to apply the queries, but we are not writing the query like select star from table here. We are using this pandas library function like data frame and series is there. So we see this all the function. Then there is a second library which is a NumPy. So what NumPy basically you saw about the linear algebra like matrix manipulation, matrix addition, then multiplication, then these all the things related to matrix purpose. So this all come from the NumPy library. Then we will see some basic data cleaning part. So in this cleaning part, we will combine the advantage of pandas library and advantage of NumPy library. And by using the both the library, we are cleaning our data. Okay, then yeah, the next module is R programming, in which we will see how to use the R for the statistical analysis, then how to install the R, then what are the different GUI in the R, and the R has their basic R Studio IDE, in which we are writing the code and running the code in the R Studio. But the except the R Studio, there is a one other tool they have built it now, which is a Jupyter notebook in the R programming. The Jupyter notebook is also in the Python programming also and in the R Studio also. So we will see both the interface provided by the R programming. Then we will see some mathematical calculation, how the mathematical calculation happen in the R programming. Then we are applying some arithmetic operation on that. Then we will see the data analysis, which is a list also there. Arrays there, data frame concept is there. But yeah, some difference is there in the Python and R. So we will see what are the difference between the Python and R. Why people are choosing the R programming language for the statistical analysis. So we will see these all the things. Then we will importing the different type of files, like there is a text file, there is a Excel file, CSV file, then other SQL files. So there are different type of files and we are learning to how to read that file into our environment. Okay, then these all the function related to our data manipulation or data processing, we will see how to reshape our data, how to merging our data. So all the things we will learn. Okay, so in this syllabus, if you have any doubt, so you can ask. Yes, guys. You can type in the chat box also. You can unmute and speak. Yes. No doubts. Sir, Yes. sir, the notes which you are going to provide, are they in a notepad or in slides form, that is Oh. PPT? No, not in the PPT. The notes is written in the Jupyter notebook. So whatever the theory material related to that
code queries. So it is already written in the Jupyter part. Okay, so in the same file, you will get the code also, and you will get the theory material also. Okay. Okay, sir. Yeah. So we don't have need to write that notes personally, na? No, If you are including all things in notes. yeah. So if you want, you can write your code on the copy also. I am providing from my Okay. side, but if you want something like in your language, then you can write. Okay, so whatever Okay, I sir. will Thank write you. the code, I will share the code also, and the code with material also. So I will show you how to create this type of notebooks. So in which the code file also there, no means diagram also there, then some written text also there. So in one file you can write all the things. Okay, so I will show you these things into the Jupyter notebook. Okay, so I am providing the Jupyter notebook notes. If you want, you can convert that Jupyter notebook form into the PDF form and you can take it. Okay, sir. Okay. Yes, any other? Sir, I have a question. Yes. Would like daily assignments would be provided as a part of this, Yeah, or daily at the end of the assignment is uploaded on your drive. So you have to take the assignment from their drive and you can upload it, or you can show me whatever the you are getting the errors and all. Okay, okay. So basically I am creating a one text file. In this text file there is a different questions are there, and I am uploading that file into the drive. So you all get the question I am uploading, the day wise of question there, and you can solve it. And whatever the difficulty you have, you can ask. Okay, yeah. Okay. Yes. Sir, what about projects? Projects. Yeah. So at the last, I will show you the project related to the different domain. Like in the Python has in the old domain, web part also, in the Android also, data science also. So basically, I am showing you the project which are in the data science part. So when we starting our pandas part, so with the help of the data processing, we will see the how the data processing and pandas library help us to create a different project. So we will see the project in NLP part by using the regular expression. Then we will see the second project in the image processing also. I will show you how the images will be read, write, and how to take the RGB from the image, then how to resize the image. So this basic part we will see at the last of the course. Okay, sir. Thank you. Yeah. Sir, Yes. sir, will you teach us array part in Python section 2? Yeah. In the Python there is no array concept. Yeah. So they have removed the array and converted into the list part. Okay. So array comes into the R part, but we will see some of the functionality of the array into the Python. Otherwise, you can use the NumPy. So Yes. in OOP will come under array also now. Means. Oops. Ha. Yes, oops will come into the Python session. Okay. Yes. How to do analysis on Python or R programming using? Yes, sir. We all the pandas and NumPy library done with the using the data set, because basically they are these libraries created for the data analysis purpose. So we are learning like we are reading the text file also, we are reading the CSV, Excel file, tape separated file. So we will see the example of these different file. We will see some URLs, and based from that URL we are learning like how to read the data from directly from the URL. There is no need to store that data into your local file system. So we will see all these things. Yeah. Any other question? Yes. If no question, then we will move towards our next part. Yes, guys. Is there any question?
No, sir. Okay, good. No, sir. Okay. Okay. So first we will see कि why we required Python. Okay, हमको Python का requirement क्यों है? So और हम Python तक कैसे पहुंचे? Because in the market में आपने देखा होगा there is a C, C++, Java, PHP, JavaScript, Scala, then ऐसी बहुत सारी languages है. और इसके अलावा if you go for the low level programming language like machine level programming language आपने सीखा होगा embedded programming, कुछ इसी के स्टूडेंट होते हैं उनको embedded programming लगती है, कुछ शिप लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं. सो ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन हम पाइथन को ही क्यों चूज कर रहे हैं? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? ओके, सो किसी ने पहले इसके पहले कुछ पढ़ा है पाइथन से, पाइथन के लिए थोड़ा, या उसके बारे में सुना हो कि पाइथन क्या है, कुछ भी? अच्छा, आपने कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? टाइप करो चैट बॉक्स में व्हाट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुना हो उसके बारे में. जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसी कितने डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुनी हो या आपने उस पर काम किया हो ऐसा? ओके, जैसे आकाश ने सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, सी शार्प, कोबोल, yes, COBOL is there, common business logic, C++, SQL, yes, SQL is there for the database, Ruby is there. Ruby basically the version we will see कि Ruby Python भी होता है Ruby के साथ में. Yes, HTML is there. Scala is for the big data processing. Okay, किसी ने PHP और ये सब नहीं सुना है क्या? PHP is there, JavaScript भी है. Yes, JavaScript हुआ, PHP हुआ. किसी ने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना है क्या? मॉड्यूला 3 ऐसा कुछ नाम. फोरट्रान सुना हो किसी ने? लिस्प हुआ, प्रोलॉग हुआ, मैटलैब हुआ. ये सारी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, बट इनका सबका यूज अलग अलग है. यस, लिस्प इज देयर, प्रोलॉग है. मतलब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था तो जनरली पीपल यूजिंग द प्रोलॉग. ओके, सो बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऊपर आपने किया है. ओके, सो कोई बताएगा मुझे कि व्हाई वी आर चूजिंग द पाइथन? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी दिस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It is easy to understand and the syntax are simple. या ये वाले सेंटेंस को छोड़ के दूसरा कोई बताओ, क्योंकि ये कॉमन है, ये सबको पता है, वो इजी है. उसके अलावा कुछ और? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यस, गुड. यानी बस 2 ही पॉइंट. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ओके, इजी रीडेबल. ओके, अच्छा, इसमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने पाइथन पे पहले काम किया है? यस, कोई है जिसने पाइथन पे पहले काम किया हो? यस, इन डिप्लोमा, गुड. आई हैव. सर काम नहीं किया बट फर्स्ट ईयर में था. ओके, या बेसिक. यस, सुकन्या पाटिल, यू हैव 4 year एक्सपीरियंस, नाइस. मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा. डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग व्हिच आई हैव. अदर बिल्ड इन मल्टीपल पैकेज, ओके, गुड. ओके, मतलब कुछ लोगों ने किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है पाइथन पे वो. ओके, ठीक है, तो हम देखते हैं कि पाइथन क्यों लर्न कर रहे हैं. बेसिकली हम पाइथन तक कैसे पहुंचे? बिकॉज जब आपने देखा होगा कि जब 90s के टाइम पे देयर इज नो पाइथन. ओके, सो कैसे, मतलब उन्होंने वो एक पाथ कैसे चुना जिसके कारण कि वो पाइथन या जावा तक पहुंच पाए? ओके, सो हम देखते हैं वो वाला पाथ कि व्हाट इज द पाथ देयर. ओके, सो सी, सबसे पहले क्या हुआ कि जब 90s का टाइम था. ओके, सो इन द 90s टाइम, समझ ये 99 कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, 90s समझ लो, 90s का टाइम. ओके, सो व्हाट हैपेंड,
तो तब क्या होता था कि तब आपके पास में मतलब डिफरेंट मशीन्स नहीं थी। सो जनरली पीपल क्या करते थे कि उनका जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर था वो किसके जैसा था, 8085 के जैसा। मींस 8085 क्या है, कि माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि आपको जो भी काम करवाना होता था आप इस माइक्रो प्रोसेसर में उस टाइप की लैंग्वेज लिखते थे और उसके अकॉर्डिंग वो काम हो जाता था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जब 8085 जब रन होता था, ओके, सो ये इसको रन होने के लिए आपको पता होगा कि बाइनरी लैंग्वेज लगती है, ठीक है। सो 8085 को लगती है बाइनरी लैंग्वेज, ओके, बाइनरी इन द 0 एंड 1 फॉर्म। अब क्या होता था, अगर मान लो एक कोड है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइन लिखना पड़ेगी मुझे, अगर मुझे किसी ने कहा कि वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन को इस 0 और 1 में लिखो, सो मेरे लिए तो बहुत बोरिंग टास्क हो जाएगा, क्योंकि इतने 0 1 में कैसे लगाऊंगा। अगर आपने देखा होगा कि जब बाइनरी लैंग्वेज लिखते हैं, सो अगर आपको कुछ लिखना हो, जैसे कि मुझे 2 लिखना है, सो वहां पर 2 का मीनिंग 2 नहीं होता है। आपको उसे बाइनरी में जब आप कन्वर्ट करते हो तो बेसिकली बाइनरी जो है वो आपकी 8 डिजिट में चलती है, मीन्स 2 की पावर में। सो अगर मुझे 2 को राइट करना है ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा 0 0 0 0, कितने हुए 4, सो 1 2 1 एंड 0, यस। सो मुझे अगर 2 लिखना है, सो 2 लिखने के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा। अब सोचो कि अगर मेरे कोड में अगर बड़े बड़े नंबर हुए लाइक 1000, सो मुझे वहां पर कितने सारे जीरोस और कितने सारे 1 का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। सो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एवरी टाइम 8085 के पास जाऊं और वहां पर जाकर बाइनरी को राइट करूं, ठीक है। सो फिर अब आपको तो पता होगा साइंटिस्ट लोग टैलेंटेड, ये चीज हमारे लिए काम नहीं कर रही ना, तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, और थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद में उन्होंने एक नई लैंग्वेज डिजाइन की जिसका नाम था क्या, असेंबली, ठीक है, असेंबली, असेंबली लैंग्वेज। सो सॉरी, एन इज देयर। सो असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, बेसिकली उन्होंने इस काम को थोड़ा सा एडवांस किया, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एडवांस किया। उन्होंने क्या किया, अगर आपको दो नंबर का एडिशन करना है, लाइक मुझे क्या करना है कि 12 का एंड 12 के साथ में एक नंबर है 13, और मुझे इन दोनों का एडिशन करना है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि यहाँ पर आप क्या करो कि 12 लिखो और प्लस 13 करो, ऐसा नहीं। जब जब असेंबली लैंग्वेज चलती है तो वहां पर ऑपरेटर्स नहीं आएंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर फंक्शंस बना दिए। अगर आपको एडिशन करना है तो यू हैव टू स्पेसिफाई एडीडी। अगर आपको कोई चीज या कुछ भी आंसर या कुछ भी वैल्यू स्टोर करना है, सो उन्होंने वहां पर एक फंक्शन बना दिया स्टोर का, ठीक है। अगर आपको माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उन्होंने एसयूबी नाम का फंक्शन बना दिया। तो ये फंक्शन क्या करता है, अब जैसे मुझे कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है तो वो एसयूबी लिखते हैं, फिर 12 लिखते हैं एंड देन कॉमा लगा के 13 लिखते हैं। तो इसका मीनिंग उस फंक्शन को समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, इस 12 में से इस 13 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो आई विल गेट द वैल्यू -1। सो इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने डिजाइन की, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि आपको ये 0101 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप सीधे नंबर दोगे तो नंबर वर्क करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब मुझे हर एक कंडीशन, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए इतनी सारी लाइंस लिखना पड़ेगी। अगर मुझे कहाँ पर एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये सारा करने के लिए मुझे सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। सो जब जैसे ही लोग मतलब जो प्रोग्रामर है वो एक स्टेप आगे बढ़े, तो उनके साथ में नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, जैसे डेटाबेस आने लगा, डेटाबेस के साथ में ये हैकिंग कॉन्सेप्ट और ये मतलब मल्टीपल चीजें, डेटा साइंस, डेटा रिलेटेड थिंग्स, ये सब आने लगा। तो जब ये सब कंबाइन हुआ तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारा लाइन ऑफ कोड बढ़ गया। अब अगर मैंने ये वाली ले प्रोग्रामिंग अगर ज्यादा लाइन ऑफ कोड के लिए किया, तो बेसिकली मैं तो उसमें भी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा लगेंगे, इंस्ट्रक्शन बढ़ जाएंगे, तो ये भी मेरे लिए उतनी यूजफुल नहीं थी। फिर हमारे साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने फिर एक कदम आगे सोचा, वो गए मशीन लैंग्वेज की तरफ, ठीक है। सो दे मूव टुवर्ड्स मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब सॉरी, लैंग्वेज, ठीक है। सो क्या होता था, अब वे जैसे जैसे वो असेंबली से मशीन लैंग्वेज में गए, तो हमारे हार्डवेयर भी बढ़ने लग गए। अब हमारे पास में कंप्यूटर आ गया था,
कंप्यूटर आया तो उसके साथ में उसकी हार्ड डिस्क भी आ गई, उसके साथ माउस आया, कीबोर्ड आया, प्रोसेसर आया, मदरबोर्ड आया, तो ये सब कुछ आया साथ में। ठीक है, अब हमको इन सब के साथ में वर्क करना था। पहले हमारे पास में एक प्रोसेसर था, प्रोसेसर के ऊपर काम किया, हमारा काम खत्म। लेकिन अभी हमारे पास में देयर इज अ मल्टीपल थिंग्स, हार्ड डिस्क भी है, रैम भी है, फिर आपका जो भी वट एवर द थिंग्स रिलेटेड टू कंप्यूटर वो सब कुछ है। और मुझे ऐसा कोड लिखना है कि मैं ये मुझे मना ना कर पाए। लाइक अगर मैं हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, सो हार्डवेयर ने मुझे एक्सेस देना चाहिए कि या यू कैन कम्युनिकेट विथ मी। यदि मुझे रैम के साथ में कम्युनिकेट करना है तो रैम ने मुझे एक्सेस देना चाहिए कि यस यू कैन कम्युनिकेट विथ मी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी क्या, अब देखो मान लो यहाँ पर एक प्रोग्रामर है, ठीक है, ये अपना प्रोग्रामर है एक, और ये कोई दूसरा प्रोग्रामर है, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा प्रोग्रामर है, और ये है मेरी मशीन, ठीक है। सो मान लो ये मेरी एक मशीन है। अब क्या हुआ, अब प्रोग्रामर को प्रोग्रामर से बात करना था, मतलब हम एक ह्यूमन है, अगर ह्यूमन को अगर ह्यूमन से बात करनी है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर उनके लिए, उनके कम्युनिकेशन के लिए उनके पास में अलग अलग लैंग्वेजेस है। वो हिंदी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो मराठी यूज कर सकते हैं, वो तेलुगु यूज कर सकते हैं, कन्नड़, इंग्लिश विंग्लिश जो भी है, वट एवर द लैंग्वेज, सो वो सारी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं टू कम्युनिकेट बिटवीन द ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर यही बात मैं अगर कंप्यूटर के साथ में करूं, जैसे कि अगर इस प्रोग्रामर को कंप्यूटर के साथ में अगर बात करना है या कम्युनिकेट करना है, सो वो कैसे करेगा, बेसिक वो हिंदी तो नहीं जानता है, हिंदी तो उसके लिए मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है हिंदी का, देन तेलुगु भी वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ओके, सो ऐसी मल्टीपल लैंग्वेज, लेकिन वो हम इस प्रोग्रामर और मशीन के लिए कोई यूजफुल नहीं है, ठीक है। सो फिर क्या करें, अब कम्युनिकेट तो करना है, मुझे हार्डवेयर की लैंग्वेज आती नहीं, फिर मशीन बोलेगी कि मुझे ह्यूमन की लैंग्वेज आती नहीं, तो फिर ऐसा क्या करें कि जो दोनों के साथ में हमको कम्युनिकेशन करवा सके। जैसे मान लो ये एक ह्यूमन है, वो चाइनीज है, एंड तुम हो इंडियन, अब दोनों की भाषा तो अलग अलग है, तो तुम क्या करोगे, एक मीडिएटर रखोगे ना बीच में, जो क्या करे, जिसको चाइनीज भी आती हो और जिसको मतलब हिंदी भी आती हो, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वैसे ही इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हमने एक और लैंग्वेज उठा के डाल दी, ठीक है। उस लैंग्वेज को बोला क्या, ये मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सो मशीन लैंग्वेज, जब आप मशीन लैंग्वेज का कोड देखोगे तो वो होता है 0 और 1 के फॉर्म में, 0,1 के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन वो अब हमको 0,1 तो नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड देंगे, वो कोड कन्वर्ट होगा 1 एंड 0 में, और वो कोड दिया जाएगा मशीन को। जब मशीन उससे सेंड करेगी 0 और 1 के फॉर्म में, तो वो हमारा इंटरमीडिएटर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में, और हमको आंसर देगा। सो हम लोग यूज करेंगे एक मीडियल, उसको बोलते हैं क्या, मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। वो मिडिल लेवल लैंग्वेज, ओके। सो हम आ गए मिडिल लेवल लैंग्वेज पे। अब सो मिडिल लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज है, सो सी प्रोग्रामिंग आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, वैसे ही आई थिंक C++ भी है। सो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो मिडिल लेवल पे काम करती है। आप C में हार्डवेयर लेवल के कोड भी लिख सकते हो, आप चाहो तो C के अंदर कंपाइलर लेवल के कोड भी लिख सकते हो। सो C ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दोनों के साथ में कम्युनिकेट कर सकती है, हार्डवेयर के साथ में भी और प्रोग्रामर के साथ में भी। सो ये क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। लेकिन आपने देखा होगा जब C का कोड लिखा जाता है तो एवरीथिंग यू हैव टू राइट इनटू द मेन पार्ट, ठीक है। सो आप एक मेन का फंक्शन बनाते हो, उस मेन के फंक्शन के अंदर सारा कोड लिखते हो। मतलब ये क्या है, दिस इज अ फंक्शनल टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है क्या, फंक्शनल। हम देखेंगे ये फंक्शनल क्या होता है अभी, ओके। सो हमने सी लैंग्वेज बना ली मिडिल लेवल के लिए, और ये थी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या हुआ, अब जैसे ही डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो लाइन ऑफ कोड और बढ़ गया।
मीन्स आपको छोटे छोटे काम के लिए लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था। जैसे अगर आपको एक रोबोट बनाना है तो रोबोट की आईज को अगर एक साइड से दूसरी साइड में टर्न करवाना है तो आपको उसके लिए वहां पर मशीन होगी, वो मशीन के लिए आपको अलग कोड लिखना पड़ेगा। अगर आपको हैंड अप करना है तो उसके लिए अलग कोड, हैंड डाउन करना है तो अलग कोड, आपको लेफ्ट में मूव करना है तो अलग कोड, राइट में मूव करना है तो अलग कोड। सो ऐसे हर एक ऑपरेशन के लिए आपको अलग अलग लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा। अगर वो कोड में सी में लिखता तो मुझे महीनों लग जाते उस कोड को लिखने में, ठीक है। बिकॉज सी में क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है एवरीथिंग इनटू द फंक्शन, ठीक है। सो हम लोग ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो काम कर सकती है, ऐसा नहीं है कि सी वो काम नहीं कर सकती, वो कर सकती है, लेकिन उसका लाइन ऑफ कोड ज्यादा है, ठीक है। उसमें कुछ भी अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो हम फिर क्या हुआ, फिर हम लोग एक स्टेप और आगे निकल गए और फिर हमने एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट, उसका नाम क्या था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारा हम लोग रिपीट करेंगे जब हम लोग हमारे यूनिट उसमें मूव करेंगे तब। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब हाई लेवल का मीनिंग क्या होता है कि हाई लेवल जो लैंग्वेज है ना वो हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट नहीं करती। मतलब अगर मुझे कोई कोड लिखना है तो मुझे हार्डवेयर की कोई टेंशन नहीं, मुझे हार्डवेयर सपोर्ट करेगा। मतलब मैं कुछ भी करूं मुझे हार्डवेयर 100% सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस लेवल की है, उसके अंदर ऑलरेडी मिडिल लेवल है। तो वो हाई लेवल क्या करती है, आप जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो हार्डवेयर के साथ में उस टाइप का कम्युनिकेट कर लेगी। तो हमें जो हमारा मेन फोकस है वो केवल प्रोग्रामिंग के ऊपर रखना है, हमें उसके हार्डवेयर में क्या चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो वो उस टाइप की लैंग्वेज होती है हाई लेवल। तो हाई लेवल में कौन कौन आता है, सो हाई लेवल में जावा आती है, देन आपकी पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, PHP। सो ऐसे डिफरेंट बहुत सारी लैंग्वेज है जो हाई लेवल पे काम करती है। हाई लेवल में काम करने से क्या होता है कि जो इसका जो प्रोग्रामर होता है उसको हार्डवेयर रिलेटेड क्वेरीज से कोई मीनिंग नहीं होता, उसको वहां पर क्या चल रहा है, उसके लिए क्या कोड चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अब केवल अपना फोकस जो भी उसको टास्क है उस टास्क के ऊपर लाइन ऑफ कोड लिखने में होगा उसका, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि 90 से जब हम लोग यहाँ तक आए तो हमारी लैंग्वेज कैसे वन बाय वन चेंज हुई, ठीक है। अब जैसे पाइथन है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में कोई और दूसरी लैंग्वेज आ जाए जो इनको रिप्लेस करके कुछ और एक्स्ट्रा टास्क करेगी। सो ऐसे मल्टीपल लैंग्वेज हम लोगों ने डिजाइन की। सो पहले हम लोग चिप लेवल प्रोग्रामिंग पे आए, 8085 पे आए, देन वी सॉ द असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। देन उसके कुछ डिसएडवांटेज थे, उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज डिजाइन की। देन अगेन हमको हार्डवेयर की प्रॉब्लम आ गई, हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट करना है तो कुछ मिडिल लेवल बनाना पड़ेगा। सो हमने मिडिल लेवल बनाया। अब अगर हमको उस मिडिल लेवल, मतलब इतना कोड तो हम लोग नहीं लिख सकते कि हम कोड पे भी ध्यान दें और लो लेवल पे भी ध्यान दें। सो हम लोगों ने क्या किया, लो लेवल पार्ट वाला किसी और को दे दिया, जो भी हम लोग काम करते हैं उसको हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल दिया। सो इन लैंग्वेज में से हम लोग सीखेंगे पाइथन, ठीक है। सो आ गए हम लोग पाइथन पे। अब yes guys, so please unmute yourself, yes mute yourself, sorry। so आपको म्यूट करना है, ठीक है। या हर्षल, या ओके ओके। सो इसमें किसी का कोई डाउट है क्या, इस स्ट्रक्चर में? ये जो उनका पाथ था, मतलब ये हमारा पाथ नहीं है, ये एक डिजाइंड पाथ है कि कैसे वो लोग एक प्रोग्रामिंग स्टेप से दूसरी प्रोग्रामिंग में आए। अब जैसे पाइथन के बाद में अब people are moving towards the Spark are there, then Scala is there, so the ways is going on। yes, किसी कोई डाउट है इस वाले पार्ट में? ओके, यस। सो हम लोग अब देखेंगे मेन पाइथन। अब हम लोग पाइथन पे ऐसे ही पहुंच चुके हैं। तो पाइथन क्या है, आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके जितने भी
एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इसके जो जितने भी फंडामेंटल्स है वो हम लोग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते चलेंगे, ठीक है। इसका क्रिएटर कौन है, कब क्रिएट हुई, इसके एडवांटेज क्या क्या है, जो आपने बताया मुझे कि इंटरप्रिटर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, अब वो क्यों है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो Hello, sir. Praveen here. यस बोलो। Yes, sir. I just want to know what is high level. High level means we only focus on the programming language, right? We Yes. don't need to focus on hardware. It means what? इसका मीनिंग क्या है कि हार्डवेयर, जैसे अब तुमने सी लैंग्वेज में पॉइंटर देखा है क्या? नहीं। Yes, sir. यस। सो पॉइंटर क्या करता था बेसिकली, आप उसको क्या करते थे कि एक एड्रेस देते थे और उस एड्रेस पे जाके वो जो भी चेंजेस करना है या वो चेंज करता था, ठीक है। अब हार्डवेयर लेवल का मीनिंग क्या है, जैसे अपने पीसी के अंदर आपने देखा होगा कि आपके जो मेमोरी स्टोरेशन है वो कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में भी हो सकता है, रैम में भी हो सकता है, ठीक है। सो वो हमारा स्टोरेज कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है, मतलब किस एड्रेस पे जा रहा है, इसकी हम लोग मतलब ये सब हम लोग नहीं देखते कि वो कैसे चल रहा है, मतलब कि इंटरनल प्रोग्रामिंग क्या चल रही है हमारे पीसी के अंदर, मशीन लेवल कैसे चल रहा है, वो हम लोग नहीं देखते पाइथन में। हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो स्क्रिप्ट जो भी उसको एड्रेस मिलता है उस जगह पे जाके वो उसको सेव करती है और हमें केवल आउटपुट शो करती है। Okay. So in Java and in Python, they have their own runtime environment because of यस, that only. इसलिए तुम इंटरप्रीटर और ये सब आते हैं ना पार्ट में। Right. हाँ, Right. वरना अदरवाइज उसमें क्या करना पड़ता था सी में आपको, आप पहले कोड को टेस्ट करते थे कि मेरे कोड में कोई एरर तो नहीं है, मतलब मेरे सारे जो सिस्टम है पहले वो करेक्ट चल रहे हैं क्या, अगर उन सब ने हाँ बोल दिया तो फिर तुम रन पे क्लिक करके उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली कोड लिखोगे और सीधे रन कर दोगे, जो उसका कंपाइलेशन जो भी मतलब कम्युनिकेट करना है उसे वो इंटरनली होगा। सो बेसिकली जो पाइथन है, पाइथन आपने सुना होगा कि पाइथन सी प्लस प्लस के ऊपर डिजाइन हुई है, तो पाइथन के इनबिल्ट पैकेज में अंदर आप देखोगे ना तो आपको सी मिलेगा और सी प्लस प्लस मिलेगा, इन दोनों पैकेज के ऊपर ही पूरा पाइथन डिजाइन किया गया है ना। Okay, sir. Thank you. यस, ओके। सो सो हम लोग पहले देखेंगे इसमें पाइथन लैंग्वेज के फंडामेंटल्स, ओके। सो हम देखेंगे पाइथन लैंग्वेज फंडामेंटल्स, ओके। सो इसके फंडामेंटल्स में मतलब बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। सब टॉपिक्स में क्या क्या होता है, तो सब टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। डोंट वरी, ये जो मैं राइट कर रहा हूँ इसलिए मैं सब आपको ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि पाइथन की एप्लीकेशंस क्या है, उसके बाद में देखेंगे हम लोग कि उसके फीचर्स क्या क्या है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन के फीचर्स, पाइथन के फीचर्स के कारण ही पाइथन इतना पॉपुलर है, ओके। हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है। अभी जो आपने किसी ने बताया था मुझे रूबी, जावा, सो आप पाइथन की स्क्रिप्ट से किसी भी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो। सो हम लोग देखेंगे वो सारा पार्ट कि कैसे लोग मतलब जो प्रोग्रामर है उन्होंने पाइथन को मॉडिफाई किया है, ओके। सो हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन देखेंगे, देन इसके लिमिटेशन भी है, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस सबके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, वैसे ही पाइथन के भी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम लोग देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ पाइथन। देन पाइथन के फ्लेवर्स देखेंगे, फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के बहुत सारे फ्लेवर्स है, जैसे रूबी पाइथन है, आयरन पाइथन है, तो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब के ऊपर कि कौन कौन से फ्लेवर्स है हमारे पास में। देन इसके डिफरेंट टाइप के वर्जन आ चुके हैं पाइथन के, सो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट वर्जन, आपने सुना होगा कि पहले पाइथन 2 ज्यादा चलता था मार्केट में, अब पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द पाइथन 3। सो उन दोनों में डिफरेंस क्या था पाइथन 2 में और पाइथन 3 में, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है
जो अभी भी पाइथन 2 के ऊपर काम कर रही है, बिकॉज वो बहुत स्टेबल वर्जन था पाइथन का, पाइथन 2.7। सो ऐसे डिफरेंट टाइप के वर्जन है इसमें, सम सॉरी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ डिफरेंट वर्जन ऑफ पाइथन। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द रिजर्व्ड वर्ड इन द पाइथन। जैसे कि सारी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे कि आपने सी में देखा होगा तो मेन इज रिजर्व वर्ड, प्रिंट वहां पर रिजर्व वर्ड है, प्रिंट के बाद स्कैनएफ आपने देखा होगा वो भी रिजर्व वर्ड है, गेट ch रिजर्व वर्ड है। वैसे ही आपने C++ में देखा होगा तो सी आउट है, सी इन है। जावा में देखा होगा तो पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड में जो प्रिंट वाला पार्ट है, ये सारे क्या है, रिजर्व वर्ड है। मतलब जो हमको जब हम पाइथन स्टार्ट करेंगे तो पाइथन के साथ में ये हमको इनबिल्ट मिलेंगे। ओके, ये सारे वर्ड्स को हमको असाइन करने की या इनको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, पाइथन हमें खुद प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे पाइथन में आई थिंक 32 या 33 रिजर्व वर्ड है। हम लोग देखेंगे, उनके यूज भी देखेंगे कि वो अलग कैसे यूज में आते हैं अलग अलग टाइम। फिर हम लोग देखेंगे कि पाइथन में डेटा टाइप्स, ये जो डेटा टाइप्स है ये पाइथन का मेन पार्ट है, पूरा पाइथन डेटा टाइप्स के अंदर है। बेसिकली पाइथन में क्या है, आपका लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, फ्रोजन सेट है, ये सारे क्या है, डेटा टाइप्स है। जैसे कि आपने जैसे इसके अलावा यहाँ पर अदर डेटा टाइप्स भी होते हैं, जैसे इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, बुलियन हुआ, तो ये सारे तो है। इनके अलावा इसके पास में खुद के डेटा टाइप है, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट। और ये सबको जब आप कंबाइन कर देते हो, जो ये सारे डेटा टाइप को जब आप एक साथ कंबाइन करोगे या कंप्रेस करोगे, तो उस पूरे फॉर्म को बोलते हैं पाइथन। पाइथन के में इसके अलावा और कुछ नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। और जैसे लिस्ट है, टपल, इन डेटा टाइप को हम लोग मॉडिफाई करना सीखेंगे बाय यूजिंग, जैसे फ्लोप कंट्रोल है, इफ लूप में कैसे डालना है, व्हाइल लूप में कैसे मूव करना है। सो इन सारे डेटा टाइप्स के साथ में हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे ऑफ योर फ्लोप कंट्रोल। सो जब आप इन सबको कंप्रेस कर दोगे तो आपका एक फुल पाइथन डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस पाइथन का यूज अलग अलग डोमेन में होगा। जैसे कि आप इमेज प्रोसेसिंग में जाओगे तो इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए आपको पाइथन का स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। अगर आप डेटा साइंस डोमेन में जाओगे तो डेटा को जिस तरीके से आपको मॉडिफाई करना है या उसको विजुअलाइज करना है, तो आपको उसके लिए पाइथन का स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। अगर आप वेब टेक्नोलॉजी में जाते हो तो आपको मतलब वहां पर इमेज लिखना या वहां पर के सिंटेक्स लिखना, वहां पर प्रोटोकॉल को ट्रांसफर करना, तो इन सब के लिए भी आप पाइथन का ही यूज करते हो। जैसे आपने सुना होगा जेंगो पैकेज, जेंगो फ्रेमवर्क। सो वो बेसिकली वेब फ्रेमवर्क है, लेकिन वो रिटन इन द पाइथन है। देन आप एंड्रॉइड में जाओगे, सो आप जावा की टेक्नोलॉजी में अगर रहते हो तो एंड्रॉइड में क्या आता है, एंड्रॉइड स्टूडियो। लेकिन पाइथन के पास में उसका खुद का एक अलग फ्रेमवर्क है जो आपको एंड्रॉइड सपोर्ट करता है। वो क्या है, बेसिकली कीवी है। सो कीवी के अंदर आप राइट कर सकते हो। देन पाइथन के पास में उसके अदर जीयूआई है। तो जीयूआई में अगर आपको जाना है तो अगेन आपको मतलब बिहाइंड में आपको पाइथन ही चलेगा। तो जीयूआई के कुछ अलग लाइब्रेरीज, कुछ अलग फ्रेमवर्क होंगे जिनको पाइथन सपोर्ट करेगी, और पाइथन के कोड लिखने के बाद वो जीयूआई आपको जैसे चाहे वैसे विजुअल मतलब इफेक्ट देंगे। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट आपको बिहाइंड द सीन में पाइथन यूज करनी है। बस आपको जो उसका आउटपुट है वो डिफरेंट टाइप में मिलेगा। कभी आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिलेगा, कभी आपको वेब एप्लीकेशन मिलेगा, कभी आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन मिलेगा। तो ये सारे एप्लीकेशन है यूजर पार्ट, लेकिन इसके बिहाइंड में आपको पाइथन का स्क्रिप्ट लिखना है। ठीक है, सो ये सारे उसके फंडामेंटल्स है। ओके, सो और ये सारे वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में क्या क्या आता है, फिर पाइथन की डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो ये सारा पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो अब इनमें से हम वन बाय वन एक एक को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट है, दिस इज अ इंट्रोडक्शन टू ऑफ पाइथन। सो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपने जब भी सुनते हो तो पाइथन में क्या आता है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई मुझे बताएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? यस,
कोई भी, आप अनम्यूट होके बता सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है। यस, आप नहीं बताओगे तो लास्ट में मैं बताऊंगा ही। The language which is understood by the computers or the laptop. ओके गुड। और कोई? आपने सुना तो होगा ना प्रोग्रामिंग के बारे में, जो भी सुना हो आप बोल सकते हो। A language which is used to communicate to machine, yes good। और कोई? अच्छा, यूज क्यों करना है हमें, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे मशीन के साथ में? अब जैसे मेरे मेरे मैं एक लैपटॉप मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, सो अब मेरे जो हार्डवेयर प्रोसेसिंग तो हो रही है इसके पीछे, लेकिन क्या मैं डायरेक्टली हार्डवेयर के पास में जाके कम्युनिकेट कर रहा क्या? और मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तो यूज नहीं कर रहा हूँ अभी तुम्हारे सामने, तो देखो मैंने क्या किया है, बस मेरा एक डेस्कटॉप ओपन किया है और डेस्कटॉप ओपन करने के साथ मैं आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और मैं पाइथन और क्वेरीज भी एग्जीक्यूट कर दूंगा। लेकिन क्या मुझे मशीन लेवल लिखना पड़ा क्या? उसके लिए मुझे कम्युनिकेट नहीं करना पड़ा। सो मेरे और मशीन के बीच में ऐसा कौन है जो मुझे ये सब कम्युनिकेशन के लिए मतलब हेल्प कर रहा है? यस, यस एनीवन? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अभी मैं तुमसे किससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ? जूम एप्लीकेशन से। ठीक है, जब मैं कुछ लिखूंगा तो किससे कम्युनिकेट करूंगा? नोटपैड से। जब मुझे कुछ ड्राइंग करना होगी तो मैं किससे कम्युनिकेट करूंगा? पेंट से। सो ये सारे क्या हैं? दिस इज द एप्लीकेशन ना। सो बेसिकली मैं किस पे काम कर रहा हूँ? एप्लीकेशन पे। वो एप्लीकेशन इंटरनली उसके अंदर जो कोड लिखा है उसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं मशीन से। यस, Yes. यस। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग मशीन से कम्युनिकेट करना नहीं। प्रोग्रामिंग क्या करती है बेसिकली, ये हमको हेल्प करेगी डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है बेसिकली, हेल्पिंग अस टू क्रिएट डिफरेंट एप्लीकेशन। ठीक है, अब वो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकते हैं, मीन्स देखो डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, ओके वो एंड्रॉइड भी हो सकते हैं, फिर आपका और कौन कौन से वेब फ्रेमवर्क भी हो सकते हैं। सो ऐसे मल्टीपल टाइप डिफरेंट टाइप के वो एप्लीकेशन हो सकते हैं। डेस्कटॉप हो सकता है, एंड्रॉइड हो सकता है, वेब एप्लीकेशन होता है, लेकिन इनको बनाने के लिए मुझे लगेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल है या हाई लेवल है? यस, High level. यस हाई लेवल। सो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में सेकेंड पार्ट आता है इसका हाई लेवल। हाई लेवल क्यों बोलते हैं इसे? बिकॉज वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू मशीन पार्ट, वी आर जस्ट राइटिंग अवर स्क्रिप्ट एंड इट विल एग्जीक्यूट। ओके, मतलब हम इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे, लेकिन इसके इंटरनल में क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने कभी देखा है कि आप जब कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं या वॉट एवर यू हैव वर्किंग ऑन द विंडोज, ओके, सो आपने कभी देखा है कि विंडोज इंटरनली में कैसे हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो फाइल से उनको एग्जीक्यूट करता है? यस, किसी ने देखा है क्या? अगर मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ, मतलब मैंने एक मूवी रखी मेरी सिस्टम के अंदर, सो वो मूवी कैसे स्टोर हुई है किसी ने देखा है क्या रियल में? Yes. नहीं ना। क्यों? क्यों नहीं देख सकते हम? क्योंकि उसके ऊपर विंडोज है ना, उसने क्या किया है, सारे जो पार्ट है उनको एब्स्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, मीन्स वो इंटरनली काम करेंगे लेकिन वो हमको नहीं दिखते। हमको केवल वही चीजें दिखती है जो हम यूज करने वाले हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल है।
उसके इंटरनल में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। तो सिमिलर ओएस क्या है, एक एप्लीकेशन ही है ना। विंडोज 10 क्या है, एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो जिसके ऊपर आप क्या करते हो, सारा आपका जो भी वर्क होता है वो आप विंडोज पे करते हो, और वो इंटरनली उसका ऑटोमेटिकली वो मैनेज करता रहता है। अगर मेरे पीसी में मैंने विंडोज हटा के लिनक्स डाला तो क्या लिनक्स भी सब सेम हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट करेगा? लेकिन मुझे उसके साथ में कम्युनिकेट नहीं करना। मैं फोकस करूंगा मेरे वर्क पे, वो फोकस करेंगे उनके वर्क पे। सो प्रोग्रामर, तो हाई लेवल का मीनिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। सो हाई लेवल मीन्स क्या, प्रोग्रामर फ्रेंडली मीन्स क्या, आपको सिर्फ प्रोग्रामर के लेवल का जो भी टास्क है वो करना है। आपको जो इंटरनल टास्क है उसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सो नो वरी अबाउट बेसिक मेमोरी, देन आपका सिक्योरिटी। सो ये जो जितनी भी चीजें है ये सब आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ आपके वर्क पे फोकस करना है, ठीक है। सो एसी लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा पार्ट क्या है, जनरल पर्पस। क्या मीनिंग है जनरल पर्पस का? अब देखो, जैसे मैंने रिजर्वेशन किया, तो रिजर्वेशन में क्या हुआ कि पर्टिकुलर लोग जाएंगे, जिनके पास टिकट है वही जाएंगे। अब अगर जनरल की बात करोगे तो क्या होगा, उसमें सारे लोग एक साथ जाते हैं ना। सो जनरल पर्पस का मीनिंग क्या है कि वो किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बनाने के लिए कैपेबल है। जैसे कि अगर मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो पाइथन बोलेगी मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है तो पाइथन बोलेगा आई एम देयर। जब आपको मशीन लर्निंग करना है, सो मशीन लर्निंग करना है तो पाइथन बोलेगा मैं करके दूंगा। जब आपको डीप लर्निंग करना है, पाइथन बोलेगा मैं करके दूंगा। आपको डेटा साइंस करना है, पाइथन बोलेगा मैं। आपको हैकिंग करना है, पाइथन बोलेगा मैं। आपको एंड्रॉइड करना है, पाइथन बोलेगा मैं। इसका मीनिंग क्या है, आप किसी भी टाइप का डिफरेंट एप्लीकेशन पाइथन का यूज करके बना सकते हो। तो इसका मीनिंग होता है जनरल पर्पस, मीन्स वो सारे जनरल जो भी डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं उनके यूजफुल है। आपको इमेज प्रोसेसिंग करना है, पाइथन बोलेगा मैं हूँ। आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करना है, पाइथन बोलेगा मैं हूँ। आपको फोरकास्टिंग करना है, वेदर फोरकास्टिंग या कुछ भी करना है, पाइथन बोलेगा मैं हूँ। सो पाइथन हर जगह पे आप यूज कर सकते हो, किसी भी डिफरेंट टाइप का डेस्कटॉप ऐप या वेब एप्लीकेशन कुछ भी बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, सो पाइथन की जब डेफिनेशन देखते हैं तो पाइथन की डेफिनेशन में ये 3 टर्म्स आते हैं। कौन कौन? पहला होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा होता है हाई लेवल, और तीसरा होता है जनरल पर्पस। सो अगर आप इसको इस जनरल पर्पस से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक अगर रीड करोगे, मीन्स आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में अगर आप रीड करोगे, सो आपको क्या दिखेगा, देखो। सो अगर मैं पाइथन की डेफिनेशन लिखूंगा तो पाइथन क्या आएगा, पाइथन इज अ, सो लास्ट में कौन है, जनरल पर्पस। पाइथन इज अ जनरल पर्पस। दूसरा हाई लेवल, तीसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो ये होती है पाइथन का, ये सिंपल इंट्रोडक्शन है। सो पाइथन का इंट्रोडक्शन सिर्फ एक लाइन का है, पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर आप उसके एक एक टर्म्स को अगर ब्रेक करने जाओगे ना तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसकी एक अलग डेफिनेशन है, जब आप हाई लेवल में जाते हो तो उसकी एक अलग डेफिनेशन बनती है, जब आप जनरल पर्पस में जाते हो तो एक अलग डेफिनेशन बनती है, और जब आप ये तीनों को कंबाइन कर देते हो तब पाइथन बोलता है कि नाउ आई एम दिस, सो दिस इज योर पाइथन। ऐसा दूसरी लैंग्वेज के साथ में नहीं होता है। अगर आपको अभी हम लोग देखेंगे कि सबके क्या मतलब कौन सी लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सारी लैंग्वेज ये सारे टास्क नहीं कर सकती, बट पाइथन इज अ कैपेबल। पाइथन आप डेटा प्रोसेसिंग करना है, पाइथन रेडी है। अगर आप, और सबसे अच्छी बात पाइथन की ये है कि पाइथन का अगर आपको आपको जावा का कोड अगर रन करना है और मुझे मुझे नहीं आती जावा,
तो मैं जावा का कोड पाइथन के थ्रू रन कर सकता हूँ। अगर मुझे सी का कोड रन करना है और मुझे सी नहीं आती, तो पाइथन इतना कैपेबल है कि वो सी के कोड को पाइथन के कोड से रिप्लेस करके रन कर देगा। अगर आपको सी प्लस पर रन करना है तो पाइथन वो भी रन करके दिखाएगा। अगर आपको रूबी का कोड रन करना है तो पाइथन वो भी करेगा। आपको स्पार्क करना है तो स्पार्क भी पाइथन रन से होता है। आपके पास मैटलैब का कोड है, आपको मैटलैब रन करना है तो पाइथन वो भी रन करके देगा। अगर आपके पास आर प्रोग्रामिंग का कोड है और आप बोलोगे कि मुझे आर नहीं आती, तो पाइथन उस आर के कोड को उसके आईडी के अंदर रन करके दिखाएगा। तो इसलिए हमें एक लैंग्वेज अगर आ गई तो हम लोग इन सारी लैंग्वेज के ऊपर कमांड कर सकते हैं। सो इसलिए आज के ट्रेंड में पाइथन इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, है ना। सो जनरली आपने देखा होगा कि सब दूर सारे वर्क में आपको पाइथन पाइथन दिखती है। सो इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है, वो हम लोग देखेंगे कि इसके लिमिटेशन ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही लिमिटेशन है, बट हम है। सो हम लोग देखेंगे कि वो लिमिटेशंस भी क्या क्या होते हैं। सो ये है बेसिकली आपका पाइथन का इंट्रोडक्शन, कि पाइथन क्यों जो कम्युनिटी है वो पाइथन को सपोर्ट कर रही है, क्यों पाइथन में इतनी ज्यादा लाइब्रेरी बनी, इतनी ज्यादा कम्युनिटीज बनी। सो ये रीजन है उसका कि पाइथन इतना कैपेबल है कि वो कोई सा भी एप्लीकेशन वो आपको बनाने में हेल्प कर गया। अगर जैसे जावा में अगर आपको जावा सीख ली, फिर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो सीखना पड़ता था क्योंकि आपको एंड्रॉइड का एप्लीकेशन बनाना है। अगर आपको पाइथन आती है तो आप कीवी फ्रेमवर्क में इजीली पाइथन का कोड लिख के उसको एंड्रॉइड के फॉर्म में एपीके फाइल में रन कर सकते हो। आपको पाइथन से EXE बनानी है तो पाइथन के पास में उसका खुद पाई इंस्टॉलर नाम का पैकेज है। आप पाई इंस्टॉलर में कोड प्रोवाइड करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी EXE बन जाती है। तो ऐसे आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए पाइथन उसको कैपेबल है उसको देने के लिए। इसलिए जो कम्युनिटी है वो पाइथन की ओर ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है। सो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में? यस। और जब हम लोग ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे एक एक करके, सो जब हम इन सबको कंबाइन, इसी के अंदर ऊप्स भी आ जाएगा, तो जब हम इन सबको कंबाइन कर देंगे तो हमारा एक फुल पाइथन बन जाए। ओके। सो इसमें किसी को कोई डाउट? एक बार इसको देखो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। फिर हम लोग इसका सेकंड नेक्स्ट डेफिनेशन लेंगे। तो एक बार इसको रिवाइज करो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क। ओके। यस, एनी डाउट? नो। ओके, गुड। सो अब हम लोग इसका एक सेकेंड पार्ट देखते हैं, मेन पार्ट, फादर ऑफ पाइथन। ठीक है। सो डेफिनेटली जैसे C++, जैसे सी को डेनिस रिच्ची ने क्रिएट किया है, वैसे ही पाइथन का भी फादर आप बोल सकते हो, फादर ऑफ पाइथन। सो इसके पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपको। सो जावा, तो जावा को डिजाइन किया गया था कब? 1995 में। ठीक है। सो जावा डिजाइन हुई थी 1995 में, और पाइथन जो है वो डिजाइन हुई थी 1989 में। सो
आप देखोगे कि पाइथन जावा से पहले आई है, लेकिन आपने देखा होगा मतलब 2000 से अभी तक में जावा बहुत पॉपुलर है। मतलब सारे लोग आपने देखा होगा जावा पे काम करते थे। 9 मतलब 200 से तो सारे लोग जावा पे ही वर्क कर रहे थे, ठीक है। लेकिन पाइथन उसके पहले आई थी, फिर भी ये ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। ये तो अभी अभी मतलब आपने देखा होगा कि 2015 के बाद जब जैसे एआई, डेटा साइंस और ये सारे जो टर्म्स आए, तो पाइथन ने पॉपुलर होना स्टार्ट किया। लेकिन उसके पहले पूरा मार्केट जावा पे था, ठीक है। सो क्या था कि प्रॉब्लम क्या थी ना, कि जो उस टाइम के एप्लीकेशंस थे, तो आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर उस टाइम पे ज्यादा फेमस हुआ। बैंकिंग, फिर फाइनेंस और ये सारे सेक्टर बनना हुए। तो उसमें क्या हुआ कि उन लोगों के पास में डेटा आया, उनको डेटा को मैनेज भी करना पड़ा। सो उस टाइम के जो एप्लीकेशन थे ना, वो डेटा से रिलेटेड ज्यादा थे। और डेटा की जब बात आती है, तो सबसे पहली बात आती है सिक्योरिटी। अगर आप डेटा से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर सिक्योरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जावा सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में बहुत मीन्स क्या बोले, डिसिप्लिनरी लैंग्वेज है। जावा का सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट बहुत क्या बोलते हो आप, मजबूत है बहुत, ठीक है। बट उसके कंपेयर में पाइथन उतना सिक्योर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सो जब हमारे पास में जब डेटा से रिलेटेड टास्क आए, तो हम लोगों ने जावा पे वो काम किया। जैसे जावा से आपने देखा होगा कि डेटाबेस बनाए अलग अलग, जेडीबीसी, स्प्रिंग, हाइबरनेट और ये सब आया, ठीक है। लेकिन जो पाइथन था वो उसके पहले आया था, फिर भी वो उतना फेमस नहीं था, क्योंकि पाइथन के पास उसके करने लायक ऐसा कुछ काम नहीं था उस टाइम पे। क्योंकि उतना एआई उस टाइम पे फेमस नहीं था। एआई का डिकेट्स कब आया, ये 2014-15 के बाद में ये सारे लिफ्ट बनना स्टार्ट हुआ, फिर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ये सब आया, तब पाइथन फेमस होना। तो पाइथन का जो क्रिएटर है, उसका नाम क्या है, वो है गुइडो वेन रोसम। सो ही इज अ ग्रेट पर्सन, जिन्होंने हमको ऐसी लैंग्वेज दी जो सारा काम कर सकती है, ठीक है। सो उसकी इमेज आई थिंक मेरे पास होगा, या सो यू कैन सी this is a yeah, so he is a good when Rosam, he created a Python, okay. Yes. Yes. So हाँ, अब पाइथन आपको आपके पीसी के ऊपर रन करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट टाइप के आईडीज हैं, ओके। सो जनरली हम लोग एनाकोंडा का यूज करते हैं, बिकॉज जब हम एनाकोंडा यूज करते हैं, तो उसके साथ में बाय डिफॉल्ट सारे पैकेजेस इनबिल्टली आ जाते हैं आपके पास में, ठीक है। सो मैं जो वर्किंग करता हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे करता हूँ। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जुपिटर का यूज करो, बिकॉज आप उसके साथ में आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। अगर आपको कोई डायग्राम शो करना है, तो आप डायग्राम भी शो कर सकते हो, और साथ में वो आपका कोड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा पाइथन का वहां पर। सो एक ही प्लेस के ऊपर आप मल्टीपल थिंग्स कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप जुपिटर का यूज करो। तो उसका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। सो आप आज हम लोगों ने ये इसका थोड़ा सा पार्ट देखा पाइथन का, और आप सब लोग इंस्टॉल करके रखोगे, तो टुमारो से हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे जितने पॉइंट्स है, सो इन सबको दिखाने के लिए मुझे पाइथन का कोड रन करके दिखाना पड़ेगा, कि पाइथन में ये रियली में ये इसका एप्लीकेशन, ये इजी टू अंडरस्टैंड जो आपने बोला, उसको दिखाने के लिए मुझे उसका कोड, छोटा सा कोड रन करके दिखाना पड़ेगा। सो उसके लिए आप सबके पीसी में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन को आपको कैसे इंस्टॉल करना है। सो आप जैसे ही नेट पे जाओगे, तो आपको क्या टाइप करना है यहाँ पर, एनाकोंडा पाइथन, ठीक है।
सो आप जैसे ही एनाकोंडा पाइथन करोगे, यहाँ पर एक इंडिविजुअल एडिशन की लिंक आ जाएगी। ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, नो वरी। सो आप इस इंडिविजुअल एडिशन पे जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे कि डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास में मैक का पीसी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हो, अगर आपके पास लिनक्स है तो आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हो। मेरे पास में विंडोज है, सो आई विल क्लिक ऑन देयर। सो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, सो ये देखो यहाँ पर एक डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी मेरे पास में ऑलरेडी है तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आप यहाँ से इसके डाउनलोड करोगे तो इसकी जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। सो एक सेकेंड। सो यस, चैट बॉक्स, यस। सो ये लिंक है, यहाँ से आप एनाकोंडा को डाउनलोड करोगे। ये थोड़ा बड़ा पैकेज है, 600 समथिंग या 477 MB का है, ठीक है। सो ये वाला आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद में आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। तो जैसे आप इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके, वैसे ही आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। इसमें बस एक ही रिक्वायरमेंट होती है, आपको वहां पर एक चेक बॉक्स आएगा। जब आप इसको रन करोगे ना, तो सेकेंड या थर्ड स्लाइड के ऊपर आपको एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स का चेक बॉक्स आएगा, उसके आगे लिखा रहेगा ऐड टू पाथ, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो आपको वो उसके आगे जो भी लिखा है ना वो सारा रेड कलर में शो होगा, ठीक है। सो आपको वो ध्यान से चेक करना है, अदरवाइज हमको उसके मतलब हमारे सिस्टम के इन्वायरमेंट में जाके उसके पाथ ऐड करने पड़ेंगे। सो इससे अच्छा है कि आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करो और वो आपको शो हो जाएगा। उसकी चेक बॉक्स की इमेज होगी आई थिंक, तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। एनाकोंडा इंस्टॉलेशन स्क्रीन शॉट्स। सो हाँ, तो ये देखो, जब आप रन करोगे ना तो सबसे पहला विंडो ऐसा आएगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर आपको सेकंड विंडो ये आएगा जहां पर वो पूछेगा कि आपको किस लोकेशन पे इसको स्टोर करना है, ठीक है। अगर आप दूसरी लोकेशन चाहते हो तो ब्राउज करके वहां से ले लेना। अब जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करते हो तो आपकी थर्ड विंडो ये वाली आती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एड एनाकोंडा 3 टू माय पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो आपको इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यदि आपने इस पे क्लिक नहीं किया ना तो आपको मैन्युअली वो सारे मतलब जो भी एनाकोंडा से रिलेटेड पार्ट्स है वो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना पड़ेंगे। सो इसको ध्यान से आप लोग सेट करना, यहाँ पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे ये पूरा रेड हो जाएगा और फिर आप यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, मीन्स ये एटलीस्ट हाफ आवर के करीबन आपका टाइम लेगा आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल होने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज आएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप ये कंप्लीट कर दोगे तो आपको यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा एट लास्ट में, इस टाइप से कि ये कंप्लीट हो जाएगा और आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो ये जैसे ये देखो यहाँ पर रेड हो रहा है। जैसे ही चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो रेड हो गया। तो ऐसे ही आपके पीसी में भी होगा। और अगर आप अगर भूल जाते हो तो नो प्रॉब्लम, हम लोग मैन्युअली उसको ऐड कर देंगे पाथ में। और लास्ट में आपको ऐसा फिनिश का स्क्रीन आ जाएगा। आप फिनिश जैसे ही करोगे तो एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर आपको देखना है कि मेरे पीसी में एनाकोंडा इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप क्या करना कि आपके स्टार्ट मेनू पे जाना और यहाँ पर टाइप करना क्या, जुपिटर। क्या टाइप करोगे, जुपिटर। सो मैं एनाकोंडा पे वर्क नहीं करता, लेकिन आप जैसे ही जुपिटर टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर एक सिंबल दिखेगा जुपिटर का। सो बताता हूं मैं आपको, जुपिटर, ये देखो इस टाइप का लोगो बना आएगा वहां पर जुपिटर का। सो अगर ये दिखा, इसका मीनिंग आपका इंस्टॉल हो गया है ऑलरेडी। ओके, शेयर करो स्क्रीन, बताता हूं। करो शेयर। किसने कहा था मुझे, ये कौन है, प्रसेनजीत, यस। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर ये
जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो पहला विंडो आपका यही आएगा। अब जैसे यहाँ पर ये आया, अब यहाँ पर एग्री करो। हाँ, अब ये इसको सारा नेक्स्ट नेक्स्ट करो। हाँ ये देखो, अब ये देखो यहाँ पर चेक बॉक्स आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हमने जस्ट मी पर कर दिया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नो 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 प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये भूला आपने तो वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा फिर सारा। ठीक है, सो अब आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। हाँ, तो अब ये टाइम लेगा, आपके पीसी की जितनी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग अब ये टाइम लेगा, और लास्ट हो जाएगा तो कंप्लीट आ जाएगा। तो बस इतना ही करना है, नो वरी। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके ठीक है, सो आपको बस इतना काम करके रखना है इंस्टॉलेशन तक का। फिर इसके बाद का जितना भी पार्ट है वो हम मुझे कोड करके दिखाना पड़ेगा आपको। सो वो वाला पार्ट हम लोग कल से 2 आवर्स का सेशन होगा, 6 to 8। ओके, सो उसमें हम लोग कल आपका जो भी प्रॉब्लम होगा इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग वो सारा देखेंगे और कोड एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, ओके Hello, sir. यस बोलो। Sir, I just want to know that is it a paid course or is it a free? नो, इट इज अ पेड कोर्स। It is a paid course, no? Okay. या यस How much fee is? Hello. यस। Yes, sir. Yeah. How much fee? फी के लिए अभी मुझे पता नहीं है उतना। सो आप मुझे मतलब आपका नंबर दे सकते हो, रोहित सर आपसे कॉल करेंगे, जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था ना, ही विल कॉल उसके रिगार्डिंग। Okay, sir. So, okay. सो यू कैन राइट योर कॉन्टेक्ट नंबर ऑन द चैट बॉक्स, तो मैं उनको इन्फॉर्म कर yes. दूंगा। या Yeah. यू राइट सर, आफ्टर इंस्टॉलिंग एनाकोंडा वी हैव टू सर्च इन द सर्च बॉक्स। हाँ, आप जुपिटर लिख के सर्च कर लो, अदरवाइज आप इंस्टॉल करके रख लो। जैसे ही कल का सेशन स्टार्ट होता है मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है वो। ओके सर यस। सर आफ्टर इंस्टॉलेशन वो हमें एक वेब पेज पे ले गए जिसपे वो बोल रहा है कि लॉगिन करना नहीं नहीं, है, वो तो सब हटा दो, वो हमारे किसी काम का नहीं, वो उसकी इंफॉर्मेशन देता है। ओके। ओके सर मतलब नोट्स जुपिटर पे और प्रोग्रामिंग भी वहीं पर करेंगे क्या हाँ हम? हाँ, हम सारा वह पार्ट वहीं पर करेंगे, पूरा प्रोग्रामिंग भी जो भी रिलेटेड होगा सब कुछ वहीं पर। तो मैं आपको कल सिखाऊंगा कि जुपिटर में कैसे काम करना है। ओके हाँ ठीक है। हाँ, आप सब सारे VS कोड, स्पाइडर वगैरह जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हो, मैं आपको सारे बता दूंगा, नो वरी, टेंशन मत लो इतना। सर क्योंकि ना आइडियल पाइथन फर्स्ट ईयर में करा था, डाउनलोड करके रखा है, इसलिए पूछ रही हूँ। आइडियल पे वो मतलब थोड़ा लो लेवल का है, हम लोग थोड़ा हाई करेंगे। ओके हाँ ठीक है। चलो, तो हम लोग कल मिलते हैं।